ناتھا خان پل پر تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 13 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ تمام زخمی مسافروں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ٹریفک پولیس نے بس کو ہٹا کر سڑک کلیئر کر دی ہے۔ بتاتے چلیں، ناتھا خان پل پر تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی ہے۔ حادثے میں 13 مسافر زخمی ہو گئے۔ بڑھتے ٹریفک حادثات روکنے کے لیے انقلابی اقدام۔ گاڑی موٹر سائیکل چلانے کے لیے لائسنس لازمی قرار دے دیا گیا۔ خواتین بزرگوں کو بھی استثناء نہیں ملے گا۔ پکڑے جانے پر بھاری جرمانہ ہوگا۔ شہریوں نے لائسنس قومی فریضہ قرار دے دیا۔ لیاری ایکسپریس وے پر مقررہ اوقات میں ہیوی ٹریفک بھی چلے گی۔ رات 10 سے صبح 6، دن 11 سے شام 4 بجے تک اجازت دینے کی تجویز۔ شاہراہ پاکستان، گرنگی، احمدی خان اور مائی کلاچی روڈ پر ٹریفک دباؤ کم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات کی ملاقات۔ ٹریفک پلان پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم۔ علیم خان نے واضح کیا، 400 ارب کا موٹر وے M6 منصوبہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاجر موٹر وے منصوبوں پر سرمایہ کاری کریں۔ تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر مواصلات کی بزنس کمیونٹی سے اہم ملاقات۔ عبدالعلیم خان نے انکشاف کیا کہ M6 منصوبہ اب مزید نظر انداز نہیں ہوگا۔ 400 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا منصوبہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے مکمل کیا جائے گا۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی انقلابی منصوبے میں سرمایہ کاری کرے۔ M6 کے لیے ہم نے اس کو 5 جو سیکشنز ہیں اس میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ان میں سے 2 سیکشنز کے الحمدللہ اس وقت تک ہماری فائنانسنگ ارینج ہو چکی ہے، جو کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی 3 سیکشنز کے اوپر بھی ہماری بات چیت جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ اس کے لیے بھی اچھی خبر سنیں گے۔ بلکہ ہم جو پاکستانی بزنس مین ہیں ان کو بھی PPP موڈ پہ راغب کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں، پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ پروجیکٹس بہت وائبل پروجیکٹس ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ M10 موٹر وے کی تعمیر سے کراچی پورٹ سے اشیاء کی ترسیل کا نظام بہتر ہوگا۔ دونوں موٹر وے منصوبے 2 سال میں مکمل ہوں گے۔ ان کی فنڈنگ کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے 15 دن میں وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے۔ M6 کے ساتھ M10 کو بھی بننا چاہیے، جو کہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے کراچی کی پورٹ کے ساتھ۔ اس کی جو انشاءاللہ تعالی دونوں کی جو تکمیل ہے، وہ میرا اپنا ٹارگٹ ہے کہ یہ 2 سال کے اندر ہم ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں۔ لیاری ایکسپریس وے کے لیے بھی میں نے CM صاحب سے کہا ہے کہ ہماری ایک مشترکہ ٹیم بن رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلے 15 دن کے اندر ایک فیزیبلٹی بنا کے تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات نے بتایا کہ گزشتہ سال 64 ارب روپے کا ریکارڈ ریونیو کمانے والا نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس سال 110 ارب روپے کا ہدف حاصل کرنے جا رہا ہے۔ کیمرامین کمل عابد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ نارتھ ناظم آباد حیدری مارکیٹ ترقیاتی کاموں میں تاخیر پر تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔ چیئرمین آل کراچی جیمز اینڈ جیولرز چیئرمین شفیع داؤد کہتے ہیں کہ تاجروں کو اعتماد میں لے کر کام مکمل کر کے مارکیٹ فرنٹ سروس روڈ کو فوری کھولا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ نارتھ ناظم آباد حیدری مارکیٹ کی تزئین و آرائش کا آغاز گزشتہ برس اکتوبر میں شروع ہوا، جسے رواں برس 16 فروری کو مکمل ہونا تھا۔ کام اور اس کی ڈیزائننگ میں تاخیر پر جیمز اینڈ جیولرز رہنماؤں نے اعتراض اٹھا دیا۔ چیئرمین شفیع داؤد بولے، سروس روڈ بند کر کے خریداروں اور تاجروں کو اذیت کا شکار کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ تھوڑا راستہ دیں۔ اس ٹائم انہوں نے جو یہ راستہ بند کیا ہے، یہ راستہ 50 سال سے کھلا ہوا تھا، قانون کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ راستہ وہاں بند ہوتا ہے جہاں پہ سیکورٹی کوئی خدشات ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے، یہاں پہ آگ لگ جائے، یہاں پہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، تو اس کو باہر نکلنے کے لیے 20 سے 25 منٹ لگیں گے، اور زندگی بچانے کے لیے 1 سیکنڈ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے پیارے بھائی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں میں تاخیر سے عید سیزن خراب ہوا۔ شہری بولے، چارج پارکنگ کے نام پر شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا ایجنڈا، ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مارکیٹ لین ہے حیدری مارکیٹ بلاک جی کا مین فرنٹ کا سروس روڈ، یہ یہاں سے بند کر دیا گیا۔ اس کو فی الفور کھولا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ یہاں اہلیان محلہ بھی رہتے ہیں اور کثیر تعداد میں تاجر تجارت کرنے آتے ہیں، جن کی تعداد 3000 ہے، اور یقیناً یہاں پر ایمبولینس معاملات ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ آپ نے راستہ بند کر کے یقیناً لوگوں کی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ سر، سب سے بڑی پریشانی یہ پارکنگ مافیات بیٹھے ہوئے،
जो आवर चार्जिंग जिसके ऊपर KMC या DMC की पर्ची के ऊपर 10 रुपए बताते तौर पे लिखे हुए हैं, लेकिन वो 30 रुपए और गाड़ियों से 50 रुपए 100 रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। हैदरी मार्केट का शुमार बैनुल अक़वामी तिजारती मराकिज में होता है, जहाँ तरक्याती कामों की तकमील शजरकारी के लिए इक़दामात उठाने में इंतजामिया ताहल नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने नए माली साल बजट तजावीज़ हुकूमत को भेज दी। तजावीज़ में पाशा ने IT इंडस्ट्री के लिए 10 साल फिक्स टैक्स रजीम देने का मुतालबा कर दिया। ये भी तजवीज़ दी गई है कि पाकिस्तान के तमाम सिस्टम को डिजिटलाइज करना होगा। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने वफाकी बजट तजावीज़ भेज दी। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद ने बजट तजावीज़ में कहा है कि टैक्स पॉलिसियाँ मुस्तकिल और देर पा बनाई जाएं और IT इंडस्ट्री के लिए 10 साल फिक्स टैक्स रजीम दी जाए। पाशा बजट तजावीज़ में कहा है कि हुकूमत को SIFC इक़दामात से फ़ायदा उठाना चाहिए और फिक्स टैक्स रजीम 2025 से 2035 तक नाफिज की जाए। फिक्स टैक्स निज़ाम में PSEB से रजिस्टर्ड IT कंपनियों पर सिर्फ 0.25% विद होल्डिंग टैक्स हो। बजट तजावीज़ के मुताबिक इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की जानिब रागिब हो रही है और IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स लागू किया जाए। बजट तजावीज़ के मुताबिक IT कंपनियां मुलाजमीन पर 35% तक इनकम टैक्स लागू है। ये भी तजावीज़ दी गई हैं कि IT इंडस्ट्री के फॉरेन करेंसी रेवेन्यू की नकल व हरकत पर आसानियां पैदा की जाएं और इस तरह ज़्यादा फॉरेन करेंसी पाकिस्तान आएगी। ये भी खदशा जाहिर किया कि मुस्तकिल पॉलिसियां ना बनाई गई तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी। हमारी IT कंपनीज को हरासा करना बंद किया जाए और कहा कि पाकिस्तान के तमाम सिस्टम को डिजिटलाइज करना होगा। कहा है कि अगर कारोबार दोस्त पॉलिसियां ना दी गई तो IT इंडस्ट्री के 6 लाख लोगों की नौकरियां दाव पर लगने का खदशा है। चेयरमैन पाशा के मुताबिक दुनिया में IT इंडस्ट्री में $1 ट्रिलियन की एक कंपनी भी मौजूद है और हमें मौका मिले तो हम एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड हद तक बढ़ा सकते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। शहर में छोटे रकबे पर मुश्तमिल कई पार्क्स बदस्तूर इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल हैं, जिनमें शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का सूफी रहबर पार्क भी शामिल है, जो पार्किंग एरिया में तब्दील होकर कब्जा माफिया के निशाने पर है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र शहरियों को ग्रीन स्पेसिस की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। हरियाली का फ़रोग न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि शहरियों की ज़हनी सेहत के लिए भी नागुज़ीर है। तमाम कराची में मुतादिद छोटे पार्क्स इंतज़ामिया की गफलत का शिकार है। 4 शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 रीता प्लॉट का सूफी रहबर पार्क भी इन्हीं पार्क्स में शामिल है, जो गुज़िश्ता 5 साल से वीरान पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग के बायस पार्क जैसे मुकामात राहत का जरिया हो सकते हैं, मगर बदकिस्मती से ये सहूलत भी छिन चुकी है। पहले हरा भरा पार्क था, लाइट जाती थी, बच्चे बैठते थे, खेलते थे। अब क्या है, लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, बंजर हुआ है पूरा पार्क में बाउंड्रियाँ नहीं है। ये जगह पे कब्जा करा हुआ है पार्क का वजू का आना था, इधर घर बना दिया। समझ रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। खवातीन का कहना है कि गुंजान आबाद बुलंद इमारतों के दरमियान ये पार्क किसी नेमत से कम न था, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो ने इसे लोहे, चोरों और कब्जा माफिया के हवाले कर दिया है। तो ये है कि अच्छा आबादी में है, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ताउन कर सकता है तो अच्छा है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, बूढ़े लोग भी बैठ सकते हैं कभी आ गए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, लोड शेडिंग बहुत है, घरों में तो बैठा नहीं जाता, बाहर ही आके बैठ सकता है थोड़ा सा। इलाका मकीनों ने पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा किया है, जिनका कहना है कि फौरी इकदामात ना किए गए तो ये पार्क मुकम्मल तौर पर तजाविज़ात के नज़र हो सकता है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में खेलों के मैदान वीरान होने लगे। कोरंगी नंबर 3 में वाक़े जलालुद्दीन ग्राउंड ज़ुबूहाली का शिकार है। मैदान में कचरे के ढेर और जानवरों की मौजूदगी ने न सिर्फ ताफुन फैला दिया है बल्कि नौजवानों का जज्बा भी मांद पड़ने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। भी नहीं है, वो कचरा भी इतना आएगा, वो कचरा कुंडी है कि सिर्फ कचरा कुंडी है, सामने घर हैंगे। जी सर, हम तो एक टाइम से ये सुन रहे हैं कि ग्राउंड बन रहा है, अभी तक तो ये ग्राउंड में कोई काम का नाम और निशान ही नहीं है। बच्चों का कहना था कि हमारे पास ग्राउंड तो मौजूद है, लेकिन यहाँ ना खेल सकते हैं ना बैठ सकते हैं। गंदगी और गधों की मौजूदगी ने सब तहस नहस कर दिया है। इस ग्राउंड के ना यहाँ पे कोई ढक्कन है, ना कोई यहाँ पे कोई साफ सुथराई है, इस वजह से यहाँ पे कूड़ी कचरा बहुत ज़्यादा है। हम बचपन से बड़े हो गए, लेकिन जब से देखे हम ये ग्राउंड की हालत यही है। यहाँ गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए, पानी गटर का निकल जाता, ना इधर सफाई है।
रिहायशियों का कहना है कि जानवरों को बांधने और गंदगी फैलाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं, जिसकी वजह से ग्राउंड रफ्ता रफ्ता रेगिस्तान बनता जा रहा है। फौरी तवज्जो ना दी गई तो ये ग्राउंड मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कुरंगी में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक जा पहुंचा। कुरंगी सेक्टर 50A के मकीन सूरत हाल से बेहाल। कहते हैं लोड शेडिंग किसी जुल्म से कम नहीं। अगर कोई बिजली चोरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमें किस बात की सजा दी जा रही है? मज़ीद तफसीलात जानते हैं शायान अली की रिपोर्ट में। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। दिन भर में 14 घंटों से जायद बिजली गायब रहने लगी। कोरंगी सेक्टर 50A की रिहायशी भी परेशान। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली न होने से पानी की भी किल्लत हो जाती है। बिजली की लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया दोनों सूरतों में जारी है। एलानिया भी, और ये कि बस आई टाइम पे और आधा घंटा या 20 मिनट या 10 मिनट उसके बाद फिर गई, फिर लंबी गई, फिर हम बैठे रहते हैं। फिर कहाँ से हम बैटरी चार्ज करें, कहाँ से हम सोलर स्टार्ट करें? छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी का इतना सामना है। अगर बिजली अगर नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरेंगे? पानी का मसला रहता है। फिर पानी के लिए हमें कोई और जगह जाना पड़ता है, टैंकर डलवाना पड़ता है। और ज़ाहिर है बिजली का भी खर्चा, टैंकर का भी खर्चा। आप खुद बताएं कि किस तरह इंसान। शहरियों ने शिकवा किया कि हमारे बिल्स क्लियर होने के बावजूद पता नहीं किस बात की सजा दी जा रही है। अगर कोई बिल की अदायगी नहीं करता या बिजली चोरी में मुलव्विस है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो है 10 दफ़ा कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है इस इलाके की। 10 दफ़ा तो मैंने तस्वीरें वायरल की हैं, लेकिन मालूम करके चले आते हैं उसके बाद कुछ भी। क्या कह रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक वाले? कुछ नहीं कह रहे हैं, बोले यहाँ के जो है PMT के ड्यू चढ़े हुए हैं, ये चढ़े हुए, जिसके ड्यू चढ़े हुए हैं अगर ड्यू पूरे कर दो तो बिजली आ जाएगी। किसी ने कुंडे लिए हैं तो उनके कुंडे काटे, उनके लिए कार्रवाई करें। मेरा एक बिल आप देख सकते हैं पूरे इलाके का, मेरे जिस पट्टी में मैं रह रहा हूं सब भरते हैं। अहले मोहल्ला ने बढ़ती गर्मी में इंतजामिया से जल्द अज जल्द लोड शेडिंग के खात्मे की अपील की है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ शायान अली, सिटी 21। चरना आइलैंड नीलगू पानियों में छुपा एक कुदरती खजाना। कराची के साहिल से कुछ फासले पर वाक़ ये खूबसूरत मुकाम सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। लोग न सिर्फ ज़ेरे आब दुनिया की हैरत अंगेज़ झलक देखते हैं बल्कि क्लिफ जंपिंग और गारों की सैर जैसे सनसनीखेज़ तजुर्बात से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद ने भी चरना का ये यादगार और हैरत अंगेज़ सफ़र किया है। आइए देखते हैं उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने भी कश्ती की सवारी और स्कूबा डाइविंग करनी है तो चरना आइलैंड से बेहतर कोई जगह नहीं। आखिर मौसम गर्मा में चरना आइलैंड पर लोगों का रश क्यों बढ़ जाता है, ये जानने के लिए हम कराची से 45 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचे हैं सुनहरा बीच, और आगे का सफ़र है हमारा कश्ती पर। तो कश्ती इंतज़ार करिए, आइए चलते हैं जी। तो चरना आइलैंड के सफ़र के लिए हम कश्ती में सवार हो चुके हैं। चरना आइलैंड के एडवेंचर के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पर अभी भी हमारा 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा फर्स्ट टाइम आए हैं और समंदर की लहरें कैसी लग रही हैं आपको? अभी तक तो बहुत खतरनाक सी लग रही है। ठीक है, इंशाल्लाह देखिए कोशिश है कि चरना पे हमें इस तरह की लहरें ना मिले तो हमारा सफ़र और भी अच्छा रहेगा। किसके साथ आए हैं? मैं अपनी वाइफ के साथ आया। आप में से कौन सा और डरपोक है? इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, इसमें झगड़ा होगा। स्कूबा जो ना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने एक बार कर लिया ना तो इट्स लाइक अ मतलब नशा कि आपको और तड़प बढ़ती है कि मुझे करूं। और एक बार आप करने के बाद जो मरीन लाइफ, ये देखें अभी आप स्नॉर्कलिंग या ऊपर से देख रहे हैं वो मरीन लाइफ है, लेकिन आप डेप्थ में जाते हैं, सी बेड तक जाते हैं, वो मरीन लाइफ क्रेजी सीन्स हो। ये बलूचिस्तान की हुदूद में वाक़ एक छोटा सा जजीरा है जहाँ का पानी 20 से 60 फुट तक गहरा है, और यहाँ पर दीगर आबे हयात को जो है वो बआसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बाकी का मंजर आपके सामने जी। इस वक्त स्कूबा किट पहन के मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पर जो मेरे साथ सिलेंडर है ये खासा वजनी है, लेकिन जब मैं समंदर के अंदर जाऊँगी तो ये वेटलेस हो जाएगा। स्कूबा किट पहन के मैं समंदर के अंदर की दुनिया देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा काफ़ी अरसे से इरादा था चरना आइलैंड आने का, और मैंने इनको ही प्रिपेयर किया, स्कूबा क्लब को। मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले भी इनके साथ आ चुके हैं तो उन्होंने मुझे इन्हें रिकमेंड किया, तो मेरा फर्स्ट टाइम इनके साथ ही एक्सपीरियंस रहा। समंदर में अंदर जाने की दुनिया कैसी लगती है? बहुत अच्छी है। कोई डर खौफ लगता है? शुरू में लगता है, फिर बाद में थोड़ा सेट हो जाए। आने का प्लान है? दोबारा आने का इंशाल्लाह प्लान है वापस। कब तक आना है? इंशाल्लाह जमा करके आना है, फैमिली के साथ आना है? फैमिली के साथ आना है।